Wow, great. Today's discussion is going to be very unique. We are going to discuss on a different topic. Lot of information, lot of actually things which are associated to diabetes management. We all are going to learn about that. Let us see that how today's topic is going to help us gain some good diabetes related information, improve our knowledge on diabetes management, and work with a lot of working changes in our behavior in our lifestyle. All right. uh, Hi, Jose. Good evening. Thank you so much for joining today's session. Hello, Mr. Ajay Kumar. How are you? I hope you are taking good care of your health. हेलो शंभूलाल जी, कैसे हैं आप? आई होप आपकी ब्लड शुगर अभी अंडर कंट्रोल है. हमारे और एक्यूचेक वेल्दी मेंबर्स ज्वाइन करेंगे. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन बिफोर टाइम. I and my team absolutely love your enthusiasm, your interest level, and your urge to get more information on diabetes and upgrade and upskill your knowledge on its management, behavior, and lifestyle. All right. जल्दी से मुझे बताइए आज काफी सारे auspicious occasions है all over the world. There is a Hindu festival called Akshay Tritiya, which is regarded as an auspicious day in the Hindu calendar. There is Ramzan Eid, which is the most celebrated Eid all over the world. I would love to know your friends, family, what are the celebrations you are doing for Akshay Tritiya or for Ramzan Eid. All right. Hello, Ashok ji. Good evening. Thank you so much for joining today's session. It's a pleasure to have you as a part of AccuCheck Wealthy family. Hi, Nayan. Good evening. Thank you so much for joining today's session. I'm happy to have you as a part of our AccuCheck Wealthy team. All right. Let us give some time to our friends, our AccuCheck Wealthy members, to join in and discuss about today's topic. Meanwhile, I would love to know what is it that you are doing over this weekend? Are there any special plans? Summers are going on, strong summers actually all over India. We would love to know how are you taking care of your health this summer? Are you doing anything special, anything different than what you do in your regular routine? We would love to know that. Hello, Mr. Chakravarti. Good evening. Thank you so much for joining today's session. I hope you're doing well. Hello, Praveen ji. Good evening. Thank you so much for joining AccuCheck Wealthy and our session for today. Yes, let's wait for more members so that we can discuss on today's topic. And there is a lot of information to share, lot of knowledge sharing, lot of new changes. Hello, Mr. Shrikant. Good evening. I see this is your first webinar post enrolling in the program. Thank you so much for starting to be a part of AccuCheck Wealthy program. I am sure and confident that you will love to be a part of AccuCheck Wealthy and you will take the maximum benefit out of this program. All right. Without any wait, let's start with today's discussion. Lot of new information, lot of topics which all of you have suggested. Today's topic is something different, something special. We are going to discuss on impact of diabetes on hearing abilities and balance. Let us understand what exactly happens and how does diabetes create an impact on the hearing abilities of individuals. All right.
So over time, blood sugar levels that are too high or too low can damage nerves that affect your hearing. Hearing loss is twice as common in people with diabetes compared to those without. So basically, your nerves over time, because of high blood sugar or low blood sugar consistently for a longer time, all your nerves in the hearing signals get affected, get damaged, because of which your hearing loss is predominantly seen, especially in diabetic people. Hearing loss and health conditions. Okay. Um, Usually, a common symptom, hearing loss is a major concern because your day to day functioning, your day to day health conditions are affected, your routine lifestyle is affected. There are few health conditions also which are related to hearing loss. Cardiovascular diseases. Could the ear be a window to the heart? Hearing loss and CVD are linked. Depression. Symptoms go down. Quality of life, reduces. Connect with people reduces unless and until you use a hearing aid. Falling. Hearing loss can increase threefold risk of falling. Hospitalization. 32% people are likely to have some hospitalization because of poor hearing issues. Alzheimer's or dementia. The risk of Alzheimer's or dementia goes up by up to 4 to 5% because of hearing loss. Diabetes, 2x or 70% of diabetic people who have high uncontrolled blood sugar level. इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं, आपकी जो ब्लड शुगर है हमेशा कंट्रोल में रखिए, आपका HbA1c हमेशा कंट्रोल में रखिए, बिकॉज इफ यू हैव इट प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन एन अनकंट्रोल्ड स्टेट, it can start affecting your other organs. Okay, it is important for you to know, it is important for you to understand this, because the ability of our body to resist something is only for a particular time. All right, how our ear looks inside. Okay, सो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में हमारे सारे एक्यूचेक वेल्दी फैमिली को ये बताना चाहती हूँ कि हाउ इज इट दैट डायबिटीज एंड ह्योरिंग कैन इम्पैक्ट। इसके लिए हमें बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। बेसिकली हमारा जो ईयर है या हमारे जो कान है किससे बने होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से हमारे डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में, मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपके जो कान है या आपके ईयर्स है वो टाइनी ब्लड वेसल्स और काफी सारे लोब्स से बने होते हैं। बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल है, आप उसके बारे में मत सोचिएगा, थोड़े मेडिकल टर्म्स है। सो आप बस ये सोचिएगा कि छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के साथ बेसिकली हमारा जो ईयर है या ईयर का लोब है, अंदर का जो ईयरिंग सेक्शन है वो बना होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लोब्स, वेरियस सेक्शंस, जिसके वजह से आप अच्छा खासा सुन पाते हैं। ठीक है, इनर ईयर हैज कॉक्लिया विच हेल्प्स इन बैलेंसिंग, मतलब कौन से फ्रीक्वेंसी में आवाज अंदर जानी चाहिए, कौन सी आवाज कितने तेजी से, what is the speed, what is the axis of the nerve, what are the blood vessels, which eardrum should absorb the voices, all of these things, okay, are actually responsible for creating a balance, for actually creating a hearing mechanism for each one of us. Inner ear is affected by diabetes as it mostly has blood vessels. How diabetes affects hearing? Let's listen to this. High blood glucose levels cause tiny blood vessels in the inner ear to break disruption hearing. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अंदर का जो आपका कान का भाग होता है या सेक्शन होता है उसमें
हल्के से नर्व से ब्लड सप्लाई होता है। अभी एग्जैक्टली अगर आपका डायबिटीज बहुत ज्यादा समय के लिए अनकंट्रोल्ड है तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, बेसिकली एक कैपिलरी ट्यूब होती है या एक पतली सी सुई के साइज की ट्यूब होती है। ठीक है, उससे ब्लड सप्लाई होता है। व्हेन यू हैव हेवी डायबिटीज, वो जो कैपिलरी सिस्टम है या जो ब्लड सप्लाई है आपके नर्व्स या वेन्स या कैपिलरी से जाने वाला, दैट गेट्स क्लॉग्ड, it damages heavily because of uncontrolled diabetes. Okay, whatever damage is caused by the capillary, basically क्या होता है, इस तरह की नर्व होती है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। इतने मोटाई की समझिए नर्व है, इसमें से आवाज, ब्लड सप्लाई सब कुछ जा रहा है। जब कैपिलरी का काम करना कम हो जाता है, वो उसमें बीच की जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है और द वे द हियरिंग साउंड शुड पास, वो पास नहीं होते। इसके वजह से कैपिलरी का सिस्टम, कैपिलरी का मैकेनिज्म कम हो जाता है, एंड दैट्स द मेजर रीजन ड्यू टू डायबिटीज 50 to 60%, almost 70% of uncontrolled diabetes is affected. ठीक है, और लेट्स सी व्हाट आर द साइंस। अभी आप तो कहेंगे कि मुझे कभी कभी ऐसे होता है कि मुझे सही से सुनाई नहीं देता, या मेरा जो सिस्टम है उससे मुझे लगता है मेरे कान में कुछ गया है, या देयर इज सम डस्ट, देयर इज सम डर्ट which is affecting my system and that's why I'm unable to actually hear. तो मैं आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताती हूँ जिसके वजह से आपको ये पता चलेगा कि what are the things which affect or impact diabetes and hearing. Okay, टर्निंग द टीवी और रेडियो अप, जो नॉर्मल वॉल्यूम में बाकी लोग घर के या बाकी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स जिनको सुनाई देता है, आपको उतनी आवाज में सुनाई नहीं देता। जब मैं कह रही हूँ सुनाई नहीं देता, इसका मतलब हल्का सा भी नहीं सुनाई देता। यू आर अनेबल टू हियर और अंडरस्टैंड द कॉन्वर्सेशन। ठीक है, टीवी पे, रेडियो पे, लैपटॉप पे, फोन पे नॉर्मल लोगों से ज्यादा तेज आप सुनते हैं। ठीक है, cannot hear high pitched sounds, asking people to repeat themselves, difficulties on the telephone, ringing in the ear of the head। तो काफी बार ऐसे होता है कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कान की कोई इंजरी हुई है या कान में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उस समय पे एक बेल बजने की आवाज कॉन्स्टेंटली कान में सुनाई देती है। आपके ईयर्स में कॉन्स्टेंटली बेल बजने की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है। What does this indicate? That there is a problem. You immediately need to connect with your number one diabetologist and number two, whichever specialist, ENT specialist, he will guide you. ठीक है, स्पीकिंग लाउडली, आप जो नॉर्मल धीमे से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आवाज कम सुनाई देने की वजह से आपको लगता है कि सामने आसपास कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, और इस वजह से आप काफी तेज बोलते हैं, काफी जोर से अपने चीजों को नॉर्मल रूटीन में भी बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपके स्क्रीन पे एक पोल आएगा, उस पोल का आप रिस्पॉन्स दीजिए। Which part of the ear is mostly affected in diabetes? Inner ear, middle ear or outer ear? We would love to know कौन सा आपके हिसाब से है जिससे अफेक्ट होगा, जिसमें अफेक्ट देखा जाएगा। लेट मी सी आप में से कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आपके स्क्रीन पे एक पोल आया होगा, उसको बस आपको सिलेक्ट करना है और आपको भेजना है।
ठीक है, कौन सा इसका सही जवाब है? All right, let's see what are the results of the poll. ग्रेट, ऑसम, आप सब बिल्कुल सही है। इनर ईयर, अंदर की जो कान की आवाज है, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उस वजह से यू नो आपकी जो सुनने की एबिलिटी है वो कम होती है, क्योंकि आपका इनर ईयर, आपके कान के जो सबसे भीतर का पार्ट है, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है। Okay. इफेक्ट्स ऑफ अनट्रीटेड हियरिंग लॉस। अभी अगर आपने इग्नोर किया या आपने ध्यान नहीं दिया कि मुझे ये जो हियरिंग की प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो ठीक है, अभी कान में कुछ कचरा है तो 2-3 दिन में साफ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, कभी भी आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली मोर देन 48 आवर्स आपके कान में सुनने को तकलीफ हो रही है, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स मैंने बताए वो आप फील कर रहे हैं, इमीडिएट बेसिस पे आपके डॉक्टर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, इफेक्ट्स ऑफ अनट्रीटेड हियरिंग लॉस, एम्बैरेसमेंट, फटीग, स्ट्रेस, सोशल एक्टिविटीज में नहीं पार्टिसिपेट करना, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, डेंजर टू पर्सनल सेफ्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ओल्ड एज डायबिटिक पीपल हु हैव अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं बहुत अच्छे से, या आपका हियरिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गया है, या आप उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, या हियरिंग एड यूज नहीं कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू इट इज रियली नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि it can actually cause a life death situation. It can be really a threatening situation, जहाँ पे सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आपका ध्यान नहीं है, आपको हॉर्न सुनाई नहीं दिया, या आप कहीं पे डेंजर में हैं, या कुछ देर आर मल्टीपल थिंग्स विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हियरिंग और लेस हियरिंग, which is a major issue if your diabetes is uncontrolled for a longer time. Impaired memory and ability to learn new task. हमें ये बचपन में सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा आप नॉलेज रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, सुनोगे, उतना आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगा, नॉलेज इम्प्रूव होगा। सिमिलरली, अगर आप नहीं सुनोगे या वो प्रोसेस नहीं करोगे आपके ब्रेन में, तो आपका जो मेमोरी है या एबिलिटी है नई चीजें सीखने की, वो कम हो जाएगी। सो देर इज अ लॉट ऑफ इम्पेयरमेंट इन योर मेमोरी, एंड देर इज ability to learn new task completely reduces, reduced job performance, diminished psychological and overall health. Impact on balance. Balance of our body is managed by our inner ear or the system, vestibular system, which basically balances our entire body. High blood glucose levels cause tiny blood vessels in the inner ear to break, disruption hearing and balance. इनर ईयर, अंदर का जो आपका सुनने वाला सेक्शन है, जो वेस्टिब्युलर सिस्टम है, इनर ईयर इज द ऑर्गन विद द स्मॉलेस्ट ब्लड सप्लाई, जो हमने डिस्कस किया था, जो सुई जैसी कैपिलरी है जहां से ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, जहां से बेसिकली आपकी जितनी भी हियरिंग एबिलिटी है या ईयर को सुनने की क्षमता जिसके लिए जरूरी है, वहां से ये होना शुरू हो जाता है। तो हमें वहां पे ये समझना चाहिए कि इट्स इम्पोर्टेंट, कहीं पर भी हम ये देखें, वेनेवर 2 दिन से ज्यादा कोई भी कान की प्रॉब्लम हो रही है और आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, सबसे पहले आपके डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए। दूसरा, आपके हेल्थ कोच से डिस्कस कीजिए। मैं और मेरी टीम है आपको हेल्प करने के लिए।
तीसरा, आपके जो डायबिटोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे ईएनटी, उनसे कनेक्ट कीजिए। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस प्रॉब्लम। अभी हमने ये तो देख लिया कि कान में कौन से पार्ट्स हैं, उसका बैलेंस रखना कितना जरूरी है, या डायबिटीज का हियरिंग लॉस से क्या कोरिलेशन है। लेकिन अभी हमें ये जानना भी जरूरी है कि व्हाट इज द आइडियल ट्रीटमेंट, व्हाट इज द वे बैलेंस प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड, how can we prevent and treat hearing and balance problem. Managing your diabetes is the key to living a healthy life with diabetes. Importance of getting regular checkups. Tips for managing problems related to diabetes जैसे अच्छी लाइफस्टाइल रखना, हेल्दी खाना खाना, आपकी एक्सरसाइज रूटीन में रखना, आपके वजन पे, आपके वेट इंचेस पे, वेस्ट पे, सर्कमफेरेंस पे बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम आपकी ब्लड शुगर चेक करना, हर 3 से 4 महीने में आपका HbA1c चेक करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये जो अनकंट्रोल्ड हियरिंग का प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर पाए, उसको हेल्प कर पाए, उस वजह से आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहे। यस, तीन चीजें हैं, आई थिंक मैं और मेरी टीम हमेशा ये तीन चीजों पे काफी ज्यादा प्रीच करते हैं। मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डू नॉट एक्चुअली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट टिल देर इज अ सडन ड्रास्टिक चेंज इन योर ब्लड शुगर लेवल्स। नेक्स्ट लेवल पे तभी आपका डायबिटीज जाता है जब आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग योर HbA1c, हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हमने ये टेंडेंसी काफी सारे पेशेंट्स में देखी है। कल अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आज मैं करेले का जूस, जामुन का जूस, नीम के पत्ते, नो राइस नो रोटी, ओनली सैलेड सूप, ऐसा सब डाइट करते हैं ताकि अगले दिन डॉक्टर के क्लिनिक में ब्लड शुगर की रिपोर्ट अच्छी आ जाए। बट डॉक्टर आपकी ब्लड शुगर चेक ही नहीं करते, डॉक्टर आपकी A1C, आपका HbA1c जो 3 से 4 महीने का एवरेज ब्लड शुगर है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो वन डे यू कैन फूल योर हेल्थ, योर सेल्फ और योर डॉक्टर, बट एक्चुअली योर एवरेज इज द की। तो अगर डेली, हफ्ते में एटलीस्ट 6 डेज आप हेल्दी खा रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, सफिशिएंट हाइड्रेशन रख रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हैं, एक दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज रूटीन आप स्किप कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी, मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होती रहेगी। अभी आप सभी के पास हमारा एक्यूचेक ग्लूकोमीटर है, राइट। तो एक्यूचेक ग्लूकोमीटर को हफ्ते में आपको 2 बार चेक करना है, ऑलराइट। हफ्ते में 2 बार आपकी ब्लड शुगर को चेक कीजिए। what will happen because of this, there will be a constant check। अगर डेली आपको बोला है डॉक्टर ने डेली कीजिए, बट आइडियली इफ यू आस्क मी, the right ratio is to check it twice in a week minimum, okay। Take medication as prescribed, follow your doctor's instructions for taking medication to help prevent hearing loss। Diabetes is the key, जब तक आप बेसिक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप आगे बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट हुआ है उसकी ट्रीटमेंट लेके भी कोई भी फायदा नहीं है। लेट मी टेल यू दिस क्लियरली, आप सभी चीजों पे काम कर ले, लेकिन बेसिक क्या है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, अगर वो ही नहीं आप कर पा रहे हैं, किस तरह से आपकी हेल्थ को बेनिफिट होगा, नहीं होगा बेनिफिट, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम है उसी पे आप काम नहीं करें। तो सबसे पहले जो मैंने 5 चीजें बोली उनमें फोकस कीजिए।
सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कीजिए, ताकि और कोई भी आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। टिप्स फॉर कम्युनिकेटिंग विथ हियरिंग लॉस। ठीक है? अभी ऐसे हो सकता है कि डायबिटीज होने के 20 साल बाद, 25 साल बाद, अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल्ड नहीं है, आपका A1C एक सर्टेन लिमिट के बाहर है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको सुनाई देना थोड़ा कम लगे, आपका हियरिंग एबिलिटी अफेक्ट हो। तो उसमें कौन सी टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे यूजर्स है जो काफी समय से डायबिटिक है, 20 साल से ऊपर उनको हो गया है, दे आर डायबिटिक। तो उनके लिए ये स्पेशल टिप्स है, क्योंकि आगे चल के कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए, सबसे पहले तो अवॉइड करना है, और इसी के लिए हम ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है एवरी सिंगल डे। दिस इज नॉट अ रूटीन which can be done with just once in a week, once in a month. Every single hour you have to put an effort. Only then your blood sugars will be under control. Okay. So tips, what are the common tips? Minimize background noises, very, very important. Use face to face communication. I think जब आप एक दूसरे के एक्सप्रेशंस, फिजिकल नोटेशंस सब देख के बात करें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज ऑलवेज गुड. इफ यू आर नॉट एबल टू हियर 100%, at least with the actions, expressions, you can gauge what the person in front of you is talking. Rephrase a misheard statement rather than just repeating it. Okay. Summarize components. आपको नहीं समझ आया है तो आप बस एक दो तीन लाइन में उसको समराइज कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि जो आपने सुना है वो सही सुना है या नहीं. Regularly checking and maintaining blood sugar is the only option to reduce the risk. होने के बाद उस पे दवाई लेना, सर्जरी करना, लेजर थेरेपी लेना मुश्किल है. उससे अच्छा वो स्टेज पे जाना ही नहीं है. हमें हमें इसी तरह से कोशिश करनी है. ओके. हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसका महत्व समझे, इसका इम्पोर्टेंस समझे. ठीक है? कि कहीं पर भी हमें ये इम्पैक्ट नहीं होने देना है कि हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपके हियरिंग पे, आईज पे, किडनी पे, आपके ओवरऑल हेल्थ पे, ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से आईज पे, ईयर्स पे, सारी ऑर्गन्स पे अफेक्ट हो. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. एंड me and my team are here to help you, guide you, coach you, motivate you to ensure that your blood sugar levels and your HbA1c is under control. We are now a family of 1,20,000 users, and these are few testimonials from few of you all who have helped us reach this number. Thank you so much for being associated with us for the longest times. These are some of our seasoned members who are there with us since a long time, and they absolutely love our program. Yes, and we have started upgradation of our health programs. If you want to know more about this, please speak to your health coaches for more information. We are not just a self proclaimed company. Our groundbreaking clinical results have been published by national and international bodies. We are endorsed by Asia's largest diabetes association as the first digital therapeutics for type 2 diabetes. We are recognized by ADA, the largest association for diabetes management all over the world, American Diabetes Association, as a global innovator in diabetes in the year 2018, 2019, 2020. Our real world studies have shown incredible results. We have seen a drop of 1 to 2% of HbA1c reduction in more than 60% of our users, with a mean weight loss of 2 to 3 kgs. Yes, and besides your coach, you
Create your self complete care team, okay, which comprises of your health coach, your human health coach, your digital health coach, support to your caregivers in terms of recipes, guidance, telling on cooking techniques, doctors and in-house counselors for any mental support guidance and virtual support. It helps you learn how to help yourself in different situations. uh, Religious fasting, hypoglycemic episode, any celebrations, hospitalizations, traveling, hyperglycemic episodes, all of these things are something which really impact our health, and hence we as a AccuCheck Wealthy family should always focus on ensuring that not once but every single day our health is improved, our blood sugars are under control, we are taking a healthy diet, we are at least spending on exercise 30 minutes in a day of 24 hours, we are having enough um, fruits, vegetables, raw items, we are not consuming table sugar processed foods, we are keeping ourselves hydrated enough, all of these things just to ensure our blood sugars and A1C is under control and we do not face any complications in our diabetes management journey. With this, I leave this thought to all of you. अगर आप एक चीज पे काम करें तो सारे प्रॉब्लम्स नष्ट हो सकते हैं, लेकिन उस पे रेगुलरली फोकस करना, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है. अगर आपने कोई एक चीज एक बार शुरू कर ली है, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, जब तक आप पूरे मन से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक वो चीज में आप 100% एफर्ट नहीं डालोगे. So if you really want to work on your health, your A1C, your entire journey with AccuCheck Wealthy, ensure कि जो भी हम आपको बता रहे हैं, मेरी टीम जो भी गाइडेंस आपको दे रही है, it is for your benefit, it is for your better health, it is to improve your behavior, your lifestyle patterns, जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है. All right. With this, I leave this thought to you, and this forum is open for questions. Please feel free to drop in your questions in the Q&A box or in the chat box, and I will take up all the questions and discuss them in detail. Any questions about diabetes, weight management, and any kind of hearing ability or any other questions you have? Also, to all the users who join in a little later, thank you so much for joining today's session. We like your participation in the AccuCheck Wealthy program. And because summers are here and I don't see any questions, I'm going to take this time up and use this time to give some great information for all our users. Okay, so let us learn 3 important tips for summers. Very basic, very important. आप सभी को ये रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है. Number 1, keep yourself hydrated. As I discuss every time I speak on water, 20 kgs of your body weight, 1 liter of water. That's the ratio. If you're 60 kgs, 3 liters, 70 kgs, 3.5 liters. इस तरह से रेशियो आपको रखना है. हर 20 किलो वजन के लिए 1 लीटर पानी का माप होना चाहिए. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, सुबह उठते ही एक छोटा कप या एक छोटा ग्लास गुनगुना पानी पीना है. ल्यूकवार्म वाटर यू विल हैव टू हैव अर्ली इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक. इससे 2 चीजों में बेनिफिट होगा. नंबर 1,
There will be no constipation, because many of diabetic patients, it is seen that constipation is a major issue. आपका पेट साफ नहीं होता, आप खाना खाते हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता, जिसके वजह से फ्लक्चुएशंस आते हैं, और आपके देर इज not enough ease, and lot of other problems occur because of this. So ensuring lukewarm water helps relieve constipation. Number 2, lukewarm water पीने से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, तो सुबह उठते ही 1 कप या 1 ग्लास गुनगुना पानी आपको लेना है. करेक्ट. टिप नंबर 2, स्पेशली फॉर समर्स, अगर आपको सर्दी खांसी या कोई भी ठंड वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पूरे दिन भर में जो पानी आप ले रहे हैं उसमें 4 पुदीने के पत्ते, आधा लेमन, आधा नींबू आपको बॉटल में डाल के रखना है, एंड जस्ट कीप रीफिलिंग दैट बॉटल एंड हैव दैट वाटर थ्रू आउट द डे. इससे क्या होगा, योर वाटर, जो हमें कहते हैं कि टेस्टलेस होता है, सो योर वाटर विल हैव सम टेस्ट, some nice odor, okay, and you will feel refreshed every time you drink that lemon mint water. नंबर 2, उसके वजह से आपकी जो डाइजेशन है वो काफी सुधर जाएगी, उसके वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगी. इट इज अ काइंड ऑफ डिटॉक्स वाटर विच यू नीड टू यूज थ्रू आउट द डे. नंबर 3, very important tip, all of you must be following this, because most of my team speaks about this, having 2 raw things, one raw vegetable, one raw fruit in your daily routine. Very very important in summer. Summer is a season where dehydration comes in place, and that's the reason, actually your body needs lot of natural sugars. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शुगर खाइए, मैं ये कह रही हूँ फलों में सब्जियों में जो नेचुरल शुगर फॉर्म होती है वो आपके शरीर को जरूरी है, स्पेशली समर्स में. ठीक है, तो दिन में 1 कच्ची सब्जी, 1 फल, ये खाना है. आपको उसमें कोई नमक शक्कर कुछ भी डालना नहीं है, प्लेन एज अ रॉ आपको खाना है. ठीक है. All right, I can see few questions. Let me answer them and then I'll come back to our discussion. हेलो शंभूलाल जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच हमेशा की तरह एक्टिव रहने के लिए. शंभूलाल जी का क्वेश्चन है, मेरी शुगर कंट्रोल है, फास्टिंग 134 पीपी 160, परंतु फिर भी मेरे पैरों में जलन होती रहती है, इसका कारण क्या हो सकता है, कृपया बताइए. ओके, तो 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. नंबर 1, कोई भी हीट प्रोड्यूसिंग खाने के आइटम्स आपको नहीं लेने हैं. समर में यूजुअली काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, और अगर आपको ये काफी समय से हो रही है तो आई विल सजेस्ट कि जो भी गरम चीजें हैं, गरम टाइप के चीजें हैं, जैसे नॉनवेज आइटम है, अंडा है, या वेजिटेरियन में भी काफी सारे ऐसे आइटम्स हैं जिससे बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है. कोई भी खाने की चीज जिससे हीट प्रोड्यूस होती है वो खाने में नहीं लेना है. खाने में रेगुलरली छाछ का प्रयास रखिए, स्पेशली दोपहर के खाने में छाछ या दही का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपकी ये प्रॉब्लम कम होगी. दूसरा चीज, सोने से पहले जो आपका फोरहेड है, जो ये बीच का आपका हेड है, उसमें कोकोनट ऑयल हल्का सा गरम करना है, और वहां पे आपको टैप करना है फॉर 30 सेकेंड्स या 1 मिनट. कंटिन्यूअसली ऐसे टैप कीजिए फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट. इससे क्या होगा, दिन भर में बॉडी ने जितनी हीट प्रोड्यूस की है वो रिलीज हो जाएगी. ठीक है, तो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट कोकोनट ऑयल को टैप करना है एट द सेंटर ऑफ योर हेड. दिस विल हेल्प यू रिलीव स्ट्रेस, relieve excessive heat which your body has produced throughout the day. ठीक है,
दूसरा चीज, 2-3 दिन इसका प्रयास कीजिए, फिर भी प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट ऑप्शन इज आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होने के वजह से हो सकती है। एक बार डॉक्टर से मिल के आइए, काफी बार दवाइयों का इफेक्ट के वजह से भी होता है, तो आपके मेडिसिन को भी आपको एक बार चेक करवाना डॉक्टर से जरूरी है। बट ट्राई द होमली थिंग्स विच आई हैव सजेस्टेड, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। हेलो मिस्टर श्रीकांत, गुड इवनिंग। Carrot in salad is sufficient. Carrot will not be suggested on a regular basis. Every day have a different raw vegetable. If this is in context to the information which I gave, if your health coach has asked you to eat salad, you can ask her for some sample recipes. If that is a challenge, you can have one raw vegetable every single day. जैसे आज कुकुम्बर, कल टमेटो, परसों कैरेट, परसों घिया, अलग अलग कच्ची सब्जियां जो आप खा सकते हैं, यू कैन हैव दोस वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल वंस इन अ वीक। लेकिन हर दिन गाजर, हर दिन बीटरूट नहीं खाना है। हफ्ते में एक दिन गाजर, एक दिन बीटरूट, एक दिन कुकुम्बर, एक दिन टमेटो, एक दिन बॉइल्ड दूधी, ऐसे अलग अलग सब्जियों का सैलेड आप ले लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स विल बी सफिशिएंटली प्रोवाइडेड टू योर बॉडी। ऑलराइट, and with this, we come to the end of today's session. Thank you so much to all of you for patiently going through this information. I hope you all like this information. And next week, I have one of my team member who is going to come up and discuss on some good information. Till then, take care of your health, eat healthy, keep talking to me and my team, keep looking forward to a lot of knowledge sharing and information. I am coming up with new changes, new speakers, doctors, yoga webinars as promised to all of my AccuCheck Wealthy family. Thank you so much for your participation. See you all next week. Happy weekend.